Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now, in this particular video, we'll be changing our sequence a little bit. So we have been doing Venn diagrams for a lot of time now, right? So we'll change that a bit. We'll go back to other type of puzzles and other type of sets. And after a while, we'll come back to Venn diagrams. We have not done a lot of maximum minimum cases. We'll do maximum minimum more. Right, we have a lot of sets to go, so let's keep changing. Let's break the rhythm, right? Let's do some more additional sets, right? So after having done a few difficult sets on Venn diagram, we are going to take up a easy set, right? A set based on averages. Now let's start reading this particular set. So this says all the courtiers in the court of an emperor have a few gold coins with them. The courtiers have been divided into a total of 8 groups according to the number of gold coins they have as follows. So we can see the table. So there are 8 groups, G1 to G8, and we have been given the range of gold coins. So that is 1 to 10, 11 to 20 and so on till 71 to 80. So we can have the interpretation of this particular table from this information also. So this is given that the number of gold coins with all the members of group 1 is between 1 and 10 both inclusive, right? So that is how we have to interpret this. So G1 जो भी group है, we don't know the number of members as of now, but the number of gold coins with all the members is between 1 and 10 both inclusive, right? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कहाँ तक at best, at max हो सकता है, 10 हो सकता है. Now there is at least one member having 1 gold coin and at least one member having 10 gold coins in group 1. Now ये भी important हो गया कि हमें नहीं पता कि कितने members हैं in total जीवन में, कितने लोग हैं, but there has to be at least one person जिसके पास एक gold coin होगा and there has to be at least one person जिसके पास ये max 10 gold coins होगा, right? तो minimum and maximum जो भी आपके ranges given है उसमें minimum and maximum दो लोग के पास, दो लोग definitely आपके ग्रुप में होने ही पड़ेंगे फिर तो, राइट? तो क्योंकि एक का मिनिमम होना है और एक का मैक्सिमम होना है, मल्टीपल लोग भी मैक्सिमम वाले भी हो सकते हैं, बट देयर हैव टू बी एटलीस्ट वन ऑफ बोथ द नंबर्स. तो 2 हर ग्रुप में है, वी कैन इन्फर दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस, राइट? अदर एंट्रीज इन द टेबल आर टू बी सिमिलरली इंटरप्रेटेड. दैट मीन्स सिंपली G2 में भी एक पर्सन 11 वाला होगा, एक पर्सन 20 वाला होगा, बेयर मिनिमम, राइट? एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द ग्रुप्स. नाउ इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स in each group cannot be more than 10. Now ये important हो गया. The number of members we don't know as of now, uniquely नहीं पता, but the maximum number of members in any group has to be 10. It cannot be more than 10. The number of members in different groups can be different. It is also there that it is not precisely given that the number of members in different groups have to be equal. They can be equal, they can be different as well. So there are a lot of possibilities, right? Because the max is fixed at 10. The exact number of courtiers is not known. Again, the total number of courtiers, that is the total number of members in all the groups, is not given to us, right? So information बहुत ज़्यादा difficult तो नहीं है, right? So traditionally, ideally in an exam environment, I would take up this set. बेसिकली बस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग बेस्ड ऑन दिस सेट. सो विल हैव टू मूव टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली एंड लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करना है. आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज क्लियर. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट लग रहा है, अभी तक तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी आई नहीं है. मे बी वी नीड टू कैलकुलेट अ बिट. ऐसे सेट्स में मोस्टली आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. If there are 40 courtiers, now in this particular problem the total number of courtiers is fixed 40, but the breakdown is not given, right? We don't know for each of them, right? If there are 40 courtiers, what can be the, right? So what can be the maximum average of the number of gold coins with the courtiers? Now अभी एक बेसिकली ना मैथ्स के प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करना है. देखो ये मैक्सिमम वर्ड यहाँ पे अटैच ही क्यों करा? बिकॉज कहीं ना कहीं मैं एग्जैक्ट एवरेज निकाल ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरे को ये नहीं पता होगा ना कि किसका क्या है. मेरे को बस ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 40 कोर्टर्स हैं, उसमें से बस मेरे को ये पता है कि हर ग्रुप के दो दो लोगों का, एक का 1 होगा, एक का 10 होगा, एक का 11 होगा, एक का 20 होगा, एक का 21 होगा, एक का 30 होगा, एक का 31 होगा, एक का 40 होगा, एंड सो ऑन टिल द G8 वाला ग्रुप, राइट? तो 40 लोग तो मेरा काउंटेड नहीं है ना,
इसीलिए मेरा यूनिक आंसर नहीं आ सकता था। बिकॉज यूनिक आंसर नहीं आ सकता है, ये तो अभी तक आपको बहुत सारे सेट्स में दिख चुका होगा। जब भी यूनिक आंसर नहीं होता, देयर आर पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का मतलब देयर इज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी एंड देन देयर बिकम्स अ मैक्सिमम वाला पॉसिबिलिटी। तो इसमें उसी में से एक डायरेक्शन में आपको पूछ रखा है, दैट इज मैक्सिमम। नाउ अब मैक्सिमम कैसे फिगर आउट करेंगे? विल हैव टू मैक्सिमाइज, राइट? तो एवरेज अगर मेरे को मैक्सिमाइज करना है विद ऑल द कोटियर्स, तो मैं चाहूंगा ना कि मेरे बड़े बड़े गोल्ड कॉइन्स वाला नंबर इन्वॉल्व हो। बट देन देर इज अ रिस्ट्रिक्शन टू दिस कि इस ग्रुप में से भी 1 और 10 आएगा ही आएगा, इस ग्रुप में से 11 और 20 दो लोग का आएगा ही आएगा, G3 में से भी एक बंदे का 21 और एक बंदे का 30 आएगा ही आएगा। तो कितने लोग का आपका फिक्स्ड है? तो इफ आई सी कि हर ग्रुप में दो दो लोगों का तो आपका फिक्स्ड डेटा रहेगा ना। तो जैसे यहाँ दो लोग का 1 + 11 मतलब 1 + 10 सॉरी 11 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले ग्रुप में 11 + 20 31 आ जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप में 51 आएगा। अब थोड़ा पैटर्न नोटिस करोगे तो बेसिकली 20 से इंक्रीज हो रहा है। तो मे बी आई डोंट नीड टू नेसेसरली राइट ऑल द नंबर्स, सिर्फ मेरे को एडिशन करने से मतलब है। तो यहीं पे इसीलिए कह रहा था कि क्वांट आपका थोड़ा हेल्प करेगा कि आप जल्दी से चीज़ें ऐड कैसे कर रहे हो। तो 11 31 51 से जाके कहाँ तक जाएगा? 71 + 80 दैट इज 151। तो ये 20 के गैप पे चला होगा। नाउ इस पूरे एडिशन में कितने लोग की वैल्यूज आपने अकाउंट कर ली होगी? हर ग्रुप से दो दो, तो 8 ग्रुप्स पे 2 × 8 16। आउट ऑफ दिस 40 कोर्टियर्स आपने 16 का डेटा तो यूनिकली बोल दिया। इनका एडिशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बिकॉज दिस इज एन एपी, राइट? 20 के डिफरेंस में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है। तो मे बी मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकाल के राइट इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कर सकता हूँ। एपी का सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2 एवरेज ऑफ ऑल दीज टर्म्स दे देगा और इनटू क्या कर देंगे हम? नंबर ऑफ टर्म्स। तो 11 + 151 वुड बी 162। 162 डिवाइडेड बाई 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आप सेकंड लास्ट बाई 2 भी कर सकते हो, बट फर्स्ट एंड लास्ट इज इजी। तो 162 बाई 2, दिस मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने टर्म्स हुए? ये 8 टर्म्स। ऐसे 8 टर्म्स हम लिखते, ये आ जाएगा इनका डायरेक्टली सम, राइट? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका सम बना देगा। नाउ अभी और सम आना बाकी है। नाउ अब सम हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि मैक्सिमाइज हो, राइट? तभी मेरा एवरेज भी मैक्सिमाइज होगा। तो अब थोड़ा ध्यान दो, हमने क्या करा? हर ग्रुप में से दो दो लोग लिए, ठीक है? एंड एट मैक्स किसी ग्रुप में कितना हो सकता है? 10 हो सकता है। इसकी भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ बिकॉज टोटल 40 कोर्टियर्स है, 16 आपने अकाउंट करा, दैट मीन्स 24 कोर्टियर्स बचे। नाउ अप फ्रंट तो ऐसे सोचता कि मेरा इन 24 लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स होना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इस पूरी टेबल में आपको क्या दिख रहा है? 80। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 24 लोगों का, इन 24 लोगों का सबका 80 नहीं हो सकता। बिकॉज इस ग्रुप में एट मैक्स कितने लोग हो सकते हैं? 10 लोग हो सकते हैं, जिसमें से 2 लोग आपने अकाउंट कर ही रखे हैं, राइट? इसमें से जब 2 आपने लिया था ये 16 बनाने में, तो आपने 2 ले लिया होगा। तो एट मैक्स अगर ये 10 जा सकता है और 2 लोग आप इसमें अकाउंट कर चुके हो, तो ये 80 वाला जो नंबर है, बिकॉज मेरे को मैक्सिमम नंबर चाहिए, राइट? नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इस रेंज में, तो सबका मैं अज्यूम कर रहा हूं बिकॉज मैक्सिमाइज करना है कि सबका 80 है। बट एट मैक्स 8 लोगों का, 8 लोगों का क्या हो जाएगा? 80 हो पाएगा, राइट? तो 24 में से 8 हम इधर वाला मैक्सिमम ले लेंगे। उसके बाद अब क्या होगा? इस ग्रुप के सारे लोग एग्जॉस्ट हो गए, मतलब क्योंकि एट बेस्ट यहाँ पे 10 लोग हो सकते हैं, तो 10 लोग आपने यहाँ ले लिए। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दिस वैल्यू G7, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स फिर नेक्स्ट हाईएस्ट है। तो इसमें भी हम अज्यूम करेंगे कि 70 वाले सारे हैं। क्यों हम 69 या 68 या 67 लेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि 70 वाले उस रेंज से बस बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसमें भी मैं 8 लोग बोल सकता हूँ, बिकॉज इसमें भी 10 लोग मैक्स हो सकते हैं, 2 लोग आपने अकाउंट करे हैं। तो 8 लोगों का अगेन मैक्सिमम हम 70 ईच ले लेंगे। तो अभी 24 बनाने में ऐसे 8 8 एंड 8 का एक और चाहिए होगा, तो G6 से उठा लेंगे। तो यहाँ पे भी 8 लोग होंगे और इनका हर वैल्यू कितना कितना होगा? हम अज्यूम कर रहे हैं 60 ईच। तो ये हो गए मेरे बचे हुए 24 लोग और, राइट? सो इनका सम कितना आएगा? 8 × 60 + 8 × 70 + 8 × 80। उसमें हम डायरेक्टली 8 कॉमन ले लेते हैं और 60 + 70 + 80 ऐड करना है। मिडिल नंबर उनका 70 हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स करके हमेशा सम आता है। तो 60 70 80 का एवरेज 70 70 × 3 दैट इज 210। दिस विल बिकम योर टोटल सम। पहले सम निकाल लेते हैं और फिर उसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 281
So this will be 8, 8 8 64 plus 8, 8 2 16, and this has to be divided by what? 40, right? Let's just quickly calculate this. So ये कितना हो जाएगा? 648 plus 1680. This is divided by 40, right? तो 58.2. तो 58.2 is our maximum possible average of these 40 courtiers. तो बस यही पूछा है, what can be the maximum. So exact value अगर आप देखो 58.2 है, तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे हम? B. That is more than 58 but less than 59. राइट, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल बस आपको नंबर्स को इंटरप्रेट करना है, जो कंडीशंस है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको मैक्सिमाइज करना है. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ on the same idea, let's move on to the second problem. And obviously this will have a different logic, maybe, perhaps. Now question number 2, if the number of members in all the groups is more than 2, right? So again, the number of members in all the groups is more than 2. तो इसमें अलग टाइप की कंडीशन लग गई, सब में 2 से ज़्यादा होना चाहिए. And within each group, the number of gold coins with the members of that group, form an arithmetic progression with common difference more than 1. What is the average of number of coins with the courtiers? अब इसको थोड़ा सा पहले हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा एनालिटिकली. लेट्स टेक द ग्रुप 1 फॉर एग्जाम्पल, राइट. इसमें एक चीज तो फिक्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स आपका 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. ऑल्सो इसमें मिनिमम वाले का 1 होगा और मैक्सिमम वाले का 10 होगा, ये तो फिक्स दिया ही हुआ है आपको. इसमें ये बोल रखा है इस क्वेश्चन में, कंडीशन में, द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स with the members of the group form an arithmetic progression with common difference more than 1. और common difference more than 1 क्या हो सकता है? 2, 3, 4 ये सब हो सकता है. प्रॉब्लम ये है ना कि क्या सारे वैल्यूज हो सकते हैं, बिकॉज आपको अल्टीमेटली 10 पे एंड अप होना है. तो हम चेक कर सकते हैं बहुत सिंपली. तो 1 से मान लो कॉमन डिफरेंस अगर हम 2 लेके चले तो अगला टर्म 3 आएगा, फिर 2 लेंगे तो 5 आएगा, फिर 2 लेंगे तो 7 आएगा, और फिर 2 लेंगे तो 9 आएगा. प्रॉब्लम ये है कि 9 के बाद आप 10 पे जान नहीं पाओगे ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 2 का चल रहा है, तो ये केस वैलिड नहीं हुआ. देन लेट्स से अगर कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे 2 का था, अब हम 3 का करते हैं, तो 1 के बाद डायरेक्टली आपका 4 आएगा, फिर 7 आएगा, एंड डायरेक्टली फिर 10 आ जाएगा. दिस लुक्स परफेक्ट, राइट. इसमें पूरा पूरा आपका एपी एडजस्ट हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपका 1 and 10 भी बना. अगर इसके अलावा मैं कुछ भी कॉमन डिफरेंस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 का करा, 4 का अगर मैं करूँ तो 1, 5 और 9 आएगा, 10 नहीं बन पाएगा. अगर मैं 5 का करता हूँ तो 1, 6. फिर प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं 5 और ऐड करूँगा तो फिर 11 जाने लगेगा. तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है ना मेरे पास, राइट. आई होप दिस इज क्लियर कि मेरे पास अगर टर्म्स बनने हैं तो एग्जैक्टली ऐसा ही बन सकता है. तो हमेशा आप ये नोटिस करोगे तो ये हर ग्रुप के लिए वैलिड होगा. जैसे फर्स्ट ग्रुप में 1, 4, 7, 10 आया विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3, बिकॉज वही तो 10 नंबर है ना, अगले में भी तो 11 से 20 है, तो 11 से 20 में भी आप सिर्फ कॉमन डिफरेंस 3 के साथ ही बना पाओगे. 11 आएगा, बस यहाँ पे 1 ही तो लिखा होगा एक्स्ट्रा. 1 से 11, फिर 14, फिर 17 और फिर कितना 20, कॉमन डिफरेंस ऑफ 3, तभी वो एडजस्ट होगा. दैट मीन्स आई एम श्योर इन दिस कि यहाँ पे हर ग्रुप में टोटल एग्जैक्टली 4 लोग होंगे, राइट. 4 लोग होंगे, एंड वो नंबर्स क्या होंगे? 1, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन. तो अब इनका क्या करना है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स विद द कोर्टियर्स. नाउ सबका इसमें क्या फिगर आउट करना है? आपको एवरेज फिगर आउट करना है. नाउ इसमें मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ. देखो, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें किन चीज का एवरेज निकालना है, लेकिन क्या हमारे पास कोई बहुत सिंपल तरीका होना चाहिए एवरेज निकालने का इन सारे लोगों का? तो यस, इसमें बेसिकली आप एवरेजेस का एवरेज निकाल सकते हो. जैसे अल्टीमेटली इसमें पॉइंट ये हुआ कि हर ग्रुप में साइज बराबर है, साइज बराबर बोले तो हर ग्रुप में 4 लोग हैं, राइट. अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो यहाँ पे इस ग्रुप का एवरेज क्या आ जाएगा? किसका एवरेज होगा? वो 1, 4, 7, 10 का. इनका एवरेज अगर देखोगे तो फर्स्ट लास्ट बाई 2, दैट इज कितना आएगा? 11/2 आएगा. सिमिलरली अगर इसमें भी देखूं तो वही 4 लोग होंगे, इसमें 11, 14, 17 और 19 आएगा. 11, 14, 19 नहीं, 11, 14, 17 एंड 20. इनका एवरेज कितना आ जाएगा? 21/2. तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें आपने यही तो बनाया था, 11, 31, यहाँ पे भी 31/2. नेक्स्ट वाला आपका कितना आ जाएगा? 51/2.
राइट, बिकॉज उसमें टर्म्स क्या आएंगे 21, 24, 27 एंड 30. इनका एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं तो 30 प्लस 21 दैट इज 51/2 आएगा. तो ऐसे करते करते हर ग्रुप का एवरेज आता जाएगा. लास्ट वाले ग्रुप का एवरेज देखोगे तो 71 प्लस 80 दैट इज 151/2 आएगा. नाउ द होल पॉइंट इज, अगर मैं इन सबका एवरेज निकालना चाहता हूं ना, तो इंडिविजुअल ग्रुप, बिकॉज साइज बराबर है, ओनली दिस इज पॉसिबल बिकॉज साइज बराबर है, तो सबका एवरेज आपके पास है ही. अगर आप इसमें भी नोटिस करोगे तो ये एवरेज भी आपका एपी में बना रहे होंगे, बिकॉज सिर्फ बाई 2 ही तो हुआ, डिफरेंस तो बराबर ही चल रहा होगा आपका. तो आप इन एवरेजेस का एवरेज अगर निकाल दोगे तो ये सारे के सारे टर्म्स का एवरेज मिल जाएगा जो भी इन्वॉल्व थे. तो दैट इज, जैसे 4 टर्म सब में है ना, तो 8 आपके ऐसे ब्लॉक्स है, तो 8 इंटू 4 32 टर्म्स का एक साथ एवरेज आ जाएगा अगर आप 4 के एवरेज का एवरेज निकाल दो. राइट, ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आप एवरेजेस का एवरेज निकालोगे तो आपका ओवरऑल एवरेज आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. राइट, सो एवरेजेस का एवरेज निकालने के लिए मैं सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 कर देता हूँ. तो 11/2 प्लस 151/2 और उसका हाफ, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, 2 टर्म्स है. तो 11/2 प्लस 151/2 कितना बनेगा 162/2. 162/2/2 यही आपका आंसर होना चाहिए. तो ये कितना आ जाएगा 81/2. दिस बिकम्स 40.5 and the option becomes more than 40 but less than 41. Right, and this is how we are going to solve this particular problem. Right, I hope ये वाला part आपको समझ में आया. If you don't get it, please rewind this video. एक बार वापस से सोच के देखना. Averages का average निकालने से भी आपका average आ जाएगा. That is the whole idea I am putting forth. Right, now let's move on to the next set of problems. So now we have some additional data, right? And on the basis of that we'll have to answer these 2 problems. Right, so what is this data? The emperor appointed a council of advisors consisting of 1 member each from each of the 8 groups. इन सब में से एक एक बंदे को बुलाया. राइट, किस एवरेज वाले को बुलाया, किस गोल्ड कॉइन वाले को बुलाया ये नहीं पता. राइट, द एवरेज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स इज 43. तो व्हाट इज द डेटा करेंटली? 8 लोग आए होंगे, बिकॉज 8 ग्रुप में से सब में से एक एक बुलाया. 8 लोगों का एवरेज दिया हुआ है. राइट, एंड द 8 पीपल हैव एन एवरेज ऑफ व्हाट 43. तो इससे मैं तुरंत सम भी बोल सकता हूँ. कितना बोल देंगे 8 इंटू 3 24, 4 2 4 8 32 34. 344 is the total sum of all the gold coins with these 8 members. Right, I hope this is clear. Next, after 2 months, the emperor dropped 1 member from the council, because of which the average number of gold coins with the members of the council became 47. तो अब इस 8 में से एक पर्सन को उसने ड्रॉप करा, तो वी आर लेफ्ट विथ 7 पीपल एंड इन 7 लोगों का एवरेज कितना है 47. अगेन आई हैव टू फिगर आउट द सम. तो 7 4 280 और 49, 280 और 49, दिस वुड बी 329. राइट, 7 से 49, 9 4 एंड 32. राइट, तो 329 ये करंट सिचुएशन है. नाउ the very next day the emperor appointed 3 other members to the council, after which the average number of gold coins with the members of the council became 40. तो again simple, 7 के बाद 3 लोग को और उसने ऐड करा, तो now we have 10 people and in 10 लोगों का एवरेज कितना है 40. now simply the sum becomes 400. अब यहाँ से क्या पूछा है, we'll have to figure this out. Right, let's read the first problem. To which group does the member who was dropped from the council belong? तो बेसिकली जो मेंबर यहाँ पे ड्रॉप हुआ, which group, to which group does the member who was dropped from the council belong? तो ये तो हम बता सकते हैं तुरंत से, 344 से 329 का ड्रॉप हुआ. ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गया. तो इनका बस आप डिफरेंस देख लो, वही उस मेंबर का जो उसने ड्रॉप करा उसका नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स रहा होगा. तो कितना आ जाएगा 329 एंड 344 15. राइट, सो 15 वुड हैव बीन दैट वैल्यू. तो आप बस अब ये देख लो कि 15 किस ग्रुप वाले का पॉसिबल होगा. तो उसी ग्रुप में होगा ना जिस रेंज में 15 आता होगा. सो दैट मेंबर शुड बिलोंग टू G2. तो ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम हो गया इस साइड का. ठीक है, नाउ G2 दैट बिकम्स आंसर टू द थर्ड प्रॉब्लम. नाउ टू विच ग्रुप्स कैन द 3 न्यू मेंबर्स ऑफ द काउंसिल बिलोंग टू? नाउ इसमें अगर आप नोटिस करो तो ये जो 3 मेंबर्स थे उनका ओवरऑल सम निकालने के लिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालना पड़ेगा.
329 एंड 400 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 71 का। तो 3 लोग का कितना है 71 है। देयर आर 3 मेंबर्स एंड इनका टोटल एडिशन कितना आ रहा है 71। पूछ क्या रहा है टू विच ग्रुप्स कैन द 3 न्यू मेंबर्स ऑफ द काउंसिल बिलोंग टू, राइट। पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो विल हैव टू चेक फॉर द ऑप्शंस। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग 2 फ्रॉम G2 एंड द थर्ड फ्रॉम G3। तो अब आप कैसे चेक करोगे, 2 लोग मैंने G2 से उठाए, यहां से 2 उठाए, और G3 से क्या उठाया 1% उठाया। क्या इन तीनों का सम मेरा 71 जा सकता है, ये मेरे को चेक करना है। तो देखो अगर आप G2 से मैक्सिमम वाले भी लोग उठाओगे, और मैंने बोला कि दोनों का ही 20-20 ईच है, और G3 से जो 1% उठाया उसका भी मैक्सिमम पॉसिबल दैट इज 30 ईच है उस ग्रुप का। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका मैक्स टू मैक्स सम कितना बन पाएगा 20 + 20 इन 2 ग्रुप से, सॉरी इस ग्रुप के 2 लोगों का, एंड +30 इस G3 वाले ग्रुप से। तो एट बेस्ट आप 70 लेके जा पाओगे, बट ये तो 71 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, तो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। नेक्स्ट 2 फ्रॉम G3 एंड थर्ड फ्रॉम G4। तो अभी अगर मैंने G3 से 2 लोग उठाए, राइट, अगर मैंने G3 से यहाँ पे 2 लोग उठाए और मैंने एक G4 से उठाया, तो अब बन पाएगा क्या, ये चेक करना पड़ेगा। तो अगेन एक प्रॉब्लम आएगी आपको, प्रॉब्लम ये आना है कि आपका बनना तो 71 है, ध्यान से देखो। तो इसमें देखो मैक्सिमम सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा है, 30 एंड 40 वो तो ज़्यादा है, 71 से नीचे है। तो हम अगर लीस्ट वाले को अराउंड चेक करें 21 है 31, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने G3 से 2 लोग उठाए, अगर वो लीस्ट वाले भी हुए तो दोनों का 21-21 होगा, राइट, दोनों का 21-20, इससे नीचे नहीं जा सकता। और G4 से भी अगर लीस्ट वाला आया तब भी मेरा 31 आएगा। प्रॉब्लम ये है कि इनका लीस्ट का ही तीनों का एडिशन मेरा कितना हो जा रहा है 73। तो 71 तो कभी आएगा ही नहीं ना इस ग्रुप में, अगर आप किसी को भी सेलेक्ट करोगे, हेंस ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ ऑल 3 फ्रॉम G2, ये भी आसान हो गया, तीनों को अगर आप इसी से उठाओगे, यहाँ पे 3 लोग उठे, तो एट बेस्ट 20-20-20 दैट इज 60 पहुंच पाएगा। अगेन 71 नहीं होता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। दैट मीन्स ये आंसर बन जाना चाहिए। और चेक करो ऑल 3 फ्रॉम G3, तो इसमें मिनिमम 3 का सम 63 बनेगा 21 × 3, और मैक्सिमम बनेगा 90। तो ऑब्वियसली 63 और 90 के बीच में 71 लाई करेगा। वी कैन मेक कॉम्बिनेशन जिससे आपका 71 आ जाएगा, एंड हेंस द लास्ट ऑप्शन बिकम्स आवर करेक्ट आंसर, right? So we're done with this set. I hope you understood this. This was a very doable set. Basic understanding होनी चाहिए आपको averages की, right? And एक यहाँ पे मैंने shortcut बताया था. I hope ये वाला part आपको समझ में आया. Again, if you have any doubts in this particular set, you can just go ahead in the comments and put all your queries. Thank you. Have a good day.